Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you. There are so many students who have been requesting this topic called as nudge theory. So I'll be talking about this theory in detail now. Before we start this theory, I would like to request you all that you can download all my resources from my Telegram channel, and the description is given in the link of my channel is given in the description below. So let's begin the nudge theory. So let's talk about the brief description about this theory first. So the theory was named and popularized in 2008 book called as Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. So basically this theory was written by two American academicians. Those were Richard H. Thaler and Cass H. R. Sustain. They are the two persons who have written this theory in their book called as Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness in 2008, and from there this theory became very popular. But before this book came into picture, this theory and this book was basically taken from the Nobel Prize winning work by Daniel Kahneman and Amos Tversky. So these are the two people who have actually proposed this theory, and then later on this book was published in 2008, and then the theory became very popular. So what this theory is all about? So the theory seeks to improve the understanding and management of heuristic influence on human behavior, which plays the central role in changing people. Now जो पूरी थ्योरी है ह्यूरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है. ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है जब आप लोगों को किसी शॉर्टकट से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सिखा देते हैं. राइट, ध्यान से समझेंगे. किसी भी काम को करने का देयर कुड बी टू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. राइट, वी कैन डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और वी कैन डू सर्टेन शॉर्टकट वर्क, सम काइंड ऑफ स्मॉल जुगाड़, सम काइंड ऑफ स्मॉल टेक्निक्स which you can use for solving the same problems. Right, so those things are called heuristics. So basically जो nudge theory is completely based on heuristics. And why heuristics have been used? Because these two people believed, the founder of this theory believed that heuristic is something which has that power of influencing people, that has that central role in changing people. किसी भी तरह का change heuristics के थ्रू लाना बहुत आसान है as compared to the traditional method. और आगे चल के वो examples के थ्रू हम समझने की कोशिश भी करेंगे. Let's talk about. So the nudge theory was mainly concerned with the design of choices which influence the decision we make. Right, अब किसी भी डिसीजन को अगर हमें लेना है तो वहां पर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं. राइट, चॉइस ए हो सकता है, चॉइस बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है. बट हाउ डू वी डिजाइन दोज चॉइसेस? राइट, चॉइस ए को हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए एक हो सकता है कोई लॉन्ग मेथड हो, एक हो सकता है कोई शॉर्टकट मेथड हो. तो उस मेथड को जो आप डिजाइन ऑफ चॉइसेस क्रिएट करते हैं, दैट इज व्हाट इज पार्ट ऑफ नज थ्योरी. नज थ्योरी प्रपोजेस दैट द डिजाइन ऑफ चॉइसेस शुड बी बेस्ड ऑन हाउ पीपल एक्चुअली थिंक एंड डिसाइड. राइट, अब जो लोगों का अगर आप ध्यान से सोचें कि हाउ डू पीपल थिंक एंड डिसाइड, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत इर्रेशनल डिसीजंस होते हैं. हम इतना ज्यादा उनके बारे में सोचते नहीं, इमीडिएटली वो डिसीजन लिए जाते हैं, इंस्टिंक्टिवली वो डिसीजंस लिए जाते हैं. ऑन द अदर साइड जो पुराने लोग थे, जो ट्रेडिशनल मेथड था, वो ये बिलीव करता था कि ह्यूमन का जो डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा लॉजिकल और रैशनल होता है. ये जरूरी नहीं है कि हमें भी पता है कि हमारे हर डिसीजन लॉजिकल नहीं होता. ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हम इंपल्सिवली ले लेते हैं. हम ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं जो इतना रैशनल डिसीजन नहीं होता. बहुत ज्यादा उसमें हम ऑप्शंस नहीं देखते, बस हमें लगता है कि ये चीज सही लग रही है यार, गट फीलिंग कह रही है मेरी दैट दिस इज द राइट थिंग, वी गो फॉर इट. राइट, तो वैसे डिसीजंस भी होते हैं और उसी के ऊपर नज थ्योरी सारी बेस्ड है. राइट, so nudge theory is radically different from more sophisticated approach of achieving change in people. तो कोई भी तरह का चेंज दो तरीके से आ सकता है. एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें आप रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं. ऑन द अदर साइड नज थ्योरी कहती है द मॉडर्न मेथड इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग ऑफ चॉइसेस, कि आप चॉइसेस, शॉर्टकट मेथड्स आप कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ डू यू मोटिवेट पीपल टू डू थिंग्स. वो खुद से भी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन कि आप उनको किसी तरह का इन्फोर्समेंट दें, या मतलब रिवॉर्ड, या फिर आप उनको किसी तरह का पनिशमेंट दें. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ दिस थ्योरी. व्हाट आर द डिफरेंट पूरी पर्पस क्या है इस थ्योरी का, उसके बारे में बात करते हैं. The first purpose is understanding how people think, make decision and behave. ये पूरी थ्योरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं. राइट, अब वहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, there could be two possible ways in which people can think. Either you can think very rational, आप बहुत rationality के साथ सोच सकते हैं, और either you can think very irrationally. Right, and how do you make decision? You take decisions very impulsively, or how do you think, you take a decision with very logical options, and then you take a lot of time to decide. Right, and this is all
about this particular theory. Let's talk about the second purpose, helping people improve their thinking and decision, right? This also helps in thinking of shortcuts, thinking of heuristics, thinking of the other ways in which we can do the things, right? That is also become part of this theory. The third thing is managing all sorts of change. किसी भी तरह का हमें चेंज लाना है तो वहां पर या तो आप चेंज को इन्फोर्स कर सकते हैं, अगर आप इन्फोर्स नहीं करना चाहते, you want people to accept change, then you can think of some heuristics, you can think of some shortcuts, you can think of certain ways in which people can accept those change, right? So let's talk about the key characteristics of the theory now. The first characteristic is nudge theory accept the people have certain attitude, knowledge and capabilities and allow these factors, whereas the autocratic methods ignore them, right? अगर जो पुराने methods की हम बात करें जहां पर हम चीजों को इन्फोर्स करते हैं, ऑटोक्रेटिक मेथड कि हम किसी चीज को इन्फोर्स कर रहे हैं, चाहे लोगों की उसमें रजामंदी हो या ना हो, but they have to accept it, right? But the nudge theory accepted that people has knowledge, people have their own attitude, people has their own capabilities, they can solve the problem at their own level also. You just need to design choices, you just don't need to guide them. So that is what the characteristic of nudge theory was. Now let's talk about the second thing. Nudge theory is based on understanding and allowing for the reality of situation and human tendencies. अब ये जो पूरी थ्योरी है वो ये कहती है situations को समझिए, right? Human tendency को समझिए, rather than in the traditional method we used to force instructions. हम instructions को enforce करते थे लोगों पे and we always discount and ignore the reality of situation and people. हम लोगों के behavior को, लोगों के attitude, knowledge, capabilities को ignore करते थे, situations को ignore करते थे. हमें लगता था किसी भी situation में they just need to follow our rules, right? Third characteristic was that nudge theory operates in designing choices for people. मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे choices आपको option देनी है, आपको design करने हैं choices इस तरह से that should have encourage and positive helpful decision. लोगों को accept करने का मौका दीजिए. People should feel motivated while choosing, right? And then it becomes very easy for people and easy for society for accepting any kind of change going around them, right? Let's talk about the fourth characteristic, that it is a wonderful methodology for identifying, analyzing and reshaping existing choices. Already जो choices exist करती हैं आप उनको modify कर सकते हैं with certain shortcuts and which can influence the people given by the government, corporation or any authority. जिसकी वजह से government भी इसको use कर सकती है, organizations use कर सकती है, societies में use हो सकता है, communities में use हो सकता है. So this can happen in डेली लाइफ ऑल्सो. आप डेली लाइफ में भी नज थ्योरी को यूज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस. हम पहले थोड़े फोर्स चेंज और नज टेक्निक्स के बीच का थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं एंड देन विल टेक अप एन एग्जांपल. So let's talk about forcing methods. What happens? Force methods are very direct method, drastic method, require conscious determined effort by the person for bringing in change. किसी भी तरह का change अगर आपको लाना है, for example change in technology, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दैट चेंज, राइट? एंड व्हाट यू विल डू, यू विल इन्फोर्स पीपल. आप लोगों को फोर्स करोगे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज योर जॉब. तो इन दैट सिचुएशन पीपल विल गेट अडेप्टेड टू दोस चेंज, बट बहुत सारे लोग हो सकता है अडेप्ट ना कर पाए. अनदर फोर्सफुल थिंग इज फोर्सिंग मेथड्स आर कॉन्फ्रंटेशनल एंड लाइबल फॉर प्रोवोकिंग रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली होगा क्या, आप किसी भी तरह का चेंज लाएंगे तो व्हाट वुड हैपन, पीपल विल रेजिस्ट, लोग रेजिस्टेंस लाएंगे. जैसे अभी फार्मर लॉज आए हैं तो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, जैसे बैंक की प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो लोग उसमें भी रेजिस्ट कर रहे हैं. तो क्या होता है, कोई भी तरह का चेंज अगर हम बिना डिस्कशन के ले आते हैं या हम किसी भी तरह का कोई इन्फोर्समेंट टेक्निक यूज करते हैं तो वहां पर हमेशा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट नज टेक्निक. अगर हम नज टेक्निक की बात करें वहां क्या होता है, दोज आर easier for people to imagine doing and less threatening and disruptive to actual do. अब यहां पे क्या होता है, we use certain shortcut methods, we make people understand about the changes and because of which लोगों के लिए इसको imagine करना काफी आसान हो जाता है, उन्हें घबराहट कम होती है और वो चेंज में easily shift हो जाते हैं, राइट? मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा इसके. ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें हम डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं बताते कि व्हाट इज गोइंग अराउंड, बट इनडायरेक्टली टैक्टिकल मेथड, शॉर्टकट मेथड्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हैं. उनके लिए वही चीज, वो सेम चीज जो यहां पर आप उसको इन्फोर्स कर रहे थे, यहां पर वो चीज प्लेजर बन जाती है, लोग खुद करने लग जाते हैं उस काम को. कुछ एग्जांपल्स के साथ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब कुछ मैं डेली लाइफ के भी एग्जांपल्स लूंगा जहां से आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, राइट? So let's talk about the first example, instructing a small child for a tidy his or her room. अब किसी बच्चे को अगर अपने रूम को साफ करवाने को कहना है तो आप उसको डांटोगे, आप उसको कुछ कहोगे तो हो सकता है बच्चा रेजिस्ट करेगा, राइट? लेकिन नज टेक्निक क्या होगी,
लेट्स टॉक अबाउट नज टेक्निक। इसी का नज टेक्निक बात करते हैं। नज टेक्निक क्या होगा? प्लेइंग अ रूम टाइडी गेम विद द चाइल्ड। लोग बच्चे के साथ एक गेम बनाकर उसी गेम को आप खेलेंगे तो बच्चा खुद ही उस रूम को सारा साफ कर देगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक क्या है? इरेक्टिंग साइन सेइंग नोज फॉर लिटरिंग एंड वार्निंग फॉर फाइन्स। अब किसी भी तरह का लिटरिंग हो रही है, लोग कचरा फैला रहे हैं, राइट, अब अगर वहां पर आप फाइन करेंगे या आप लोगों को साइन सिंबल्स लगा के देंगे तो हो सकता है लोग उसको फॉलो ना करें। बट अगर यही आप लिटर बिन्स लगा दे, अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ा दे, आसपास लोगों को नजर आएगा डस्टबिन है, तो क्या होगा कि एक बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, आपको उस चीज को इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉक अबाउट ज्वाइनिंग अ जिम। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, कई लोग फोर्सफुली जिम आ जाते हैं बट उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो बाइक से जिम आ रहे हैं, राइट। तो वहां से उससे बेटर क्या होगा? यूजिंग द स्टेयर्स। आप एक सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप स्टेयर्स अप एंड डाउन करेंगे, आपका वेट लूज हो जाएगा उसी में। देन काउंटिंग कैलोरीज। बहुत सारे लोग अपनी कैलोरीज को काउंट करते रहते हैं, उसके बेहतर है कि आप स्मॉलर प्लेट्स को यूज करें। बेसिकली क्या है, अगर आप डिफरेंस को देखें तो यहां पे क्या है, उसी चीज को करने का एक लॉन्ग मेथड है या उस चीज का एक इन्फोर्स्ड मेथड है, जबकि यहां पर क्या है, उसी चीज को करने का एक शॉर्टकट टेक्निक है जो इतना प्लेजरेबल है कि वो काम भी हो जाएगा और वो चीज इतना फोर्स्ड नहीं लगेगा, राइट। तो अब इस थ्योरी के कुछ इंप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सो द नज थ्योरी इज वेरी रिलेवेंट फॉर लीडरशिप, मोटिवेशन, चेंज मैनेजमेंट। उन सभी जगहों पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल इन पर्सनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल। तो एज अ मैनेजर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ गवर्नमेंट, वी कैन यूज दिस थ्योरी एवरीवेयर। आप कहीं भी इस थ्योरी को यूज कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नज थ्योरी ऑलवेज शॉल ड्रॉ एंड कनेक्ट्स फ्रॉम मेनी अदर मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट। बहुत सारी थ्योरी से ये कनेक्टेड नजर आता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे क्लासिक मोटिवेशन थ्योरी, मैस्लो, मैकग्रीगर की थ्योरी, हर्जबर्ग की थ्योरी, ये सब कुछ इससे लिंक्ड आपको नजर आता है क्योंकि वहां पर भी उन थ्योरीज में इसी चीज की बात की गई थी कि उसी काम को आप फोर्स होकर ना कराएं, आप उस चीज के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं फॉर डूइंग थिंग्स, राइट। लोग अपनी नीड से ही उस काम को करने लग जाएंगे। फिलोसॉफिकल थिंकिंग सच एज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एथिकल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एथिकल थिंकिंग से भी ये जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बात हमें समझ में आती है वो इसके, अगर हम और इंप्लीकेशंस की बात करें तो पहली चीज क्या नजर आती है? नज इज ड्रामेटिकली इफेक्टिंग थिंकिंग एंड मेथड ऑफ मोटिवेटिंग एंड चेंजिंग पीपल। लोगों को बदलना है या उनको अगर मोटिवेट करना है, नज थ्योरी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट एडवोकेट्स चेंज इन ग्रुप्स थ्रू इनडायरेक्ट मेथड्स रादर देन द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। आपको डायरेक्टली इन्फोर्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और इनडायरेक्ट मेथड से ही वो काम हो जाता है जो आप चाहते हैं। सेंट्रल टू द नज कॉन्सेप्ट, द पीपल कैन हेल्प बाय बोथ थिंकिंग प्रॉपर एंड मेकिंग बेटर डिसीजन बाय being offered choices that has been designed to enable these outcomes। सिंपल सी बात है, किसी भी तरह के चेंज को लाना है तो वहां पर आप अपने चॉइसेस को रीडिजाइन कर सकते हैं थ्रू अ शॉर्टकट मेथड, थ्योरी ह्यूरिस्टिक्स, और उसी को हम नज थ्योरी कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग and share, like and subscribe. If you like my channel, do subscribe my channel. Do join my telegram channel जहां पर मैं सारे resources upload कर देता हूं। So we'll be meeting in the next lecture very soon. Bye bye.